آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی، یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا، اور آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کل عمران خان کی گرفتاری کے بعد مختلف شہروں میں جو پی ٹی آئی کارکنان نے صورتحال پیدا کی، اس پر آئی ایس پی آر کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے لگوائے گئے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایاز اکبر یوسف زئی سے تفصیل جانیں گے۔ ایاز، تفصیل بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، جس میں ایک ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور خصوصی طور پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا ہے، اور کابینہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے جو قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاک فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکاروں کو اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا، اس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی اس وقت جو ملک میں سیکیورٹی صورتحال ہے، اس حوالے سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی فوری جو ہے منظوری دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ فیصلہ آباد اور لاہور میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ رینجر اہلکار جو ہیں وہ فیصلہ آباد لاہور میں جو اہم شخصیات کے گھر ہیں ان پر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ واشنگٹن چانسلری عمارت کو زیادہ بولی دینے والے کو دی جائے، یہ بھی وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ملک میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے اہم فیصلہ لیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے لاہور اور فیصل آباد میں رینجرز تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ لاہور اور فیصل آباد میں اہم شخصیات کے گھروں پر رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، جو صورتحال بگڑی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد۔ عمران خان کی گرفتاری القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کے الزام میں کی گئی، نیب کی جانب سے کی گئی، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد جیسا کہ خدشہ تھا کہ کچھ لوگ ناراض ہوں گے، احتجاج کریں گے، جو کہ جمہوری روایات میں سیاسی پارٹیوں کا حق ہوا کرتا ہے، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کر گئے، اور لوگوں نے نجی سرکاری املاک کو نہ صرف نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا، بلکہ لوٹ مار کی وارداتیں بھی دیکھنے میں آئیں، جس کے بعد غیر معمولی اقدامات اب کیے جا رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں کہیں بھی عوام باہر نہیں نکلے، صرف وہ تربیت یافتہ بلوائی باہر نکلے جنہیں پچھلے کئی ماہ سے زمان پاک میں تخریب کاری کی تربیت دی جا رہی تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ آج سامنے آنے والی آڈیو سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس تخریب کاری کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا تھا۔ پی ٹی آئی نے وہ تنصیبات مارک کی ہوئی تھیں جہاں عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حملہ کیا جانا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام نے بھی تحریک انصاف کے ان دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کسی احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ مریم نے کہا کہ یہ عمران خان کی تخریبی سیاست کے منہ پر بڑا تماچا ہے۔ حکومت کو ان شرپسندوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔
मरियम नवाज का कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो मजमूई तौर पर मुल्क में सूरत हाल पैदा हो गई, उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आवाम बाहर नहीं निकले, सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर निकले हैं जिन्हें पिछले कई माह से ज़मान पार्क में तकरीबकारी की तरबियत दी जा रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि आज सामने आने वाली ऑडियो से ये बात साबित हो गई है कि इस तकरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था। पीटीआई ने वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहां इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम ने भी तहरीक इंसाफ के इन दहशतगर्दों को अपनी आंखों से देख लिया है। और सारी मंसूबाबंदी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। होश रुबा इंकशाफात आ रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली को लेकर पीटीआई रहनुमाओं की मुसलसल ऑडियोज सामने आ रही हैं। नई ऑडियो में यास्मीन राशिद और एजाज मिन्हाज को आपस में गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। यास्मीन राशिद एजाज मिन्हाज से पूछ रही हैं कि वो लोग हमें वहां से वाटर कैनन के जरिए पीछे की जानिब धकेल रहे हैं, हम वापस की जानिब बढ़ें या फिर यहीं बैठ जाएं। एजाज मिन्हाज ने जवाब दिया कि उधर से पूछे ना। यास्मीन राशिद फिर कहती हैं कि किससे पूछें, तो बोले देखें अगर लंबा बैठना है तो फिर लिबर्टी चौक बेस्ट है, या तो आप लोग इधर ही बैठते जहां पर पहले थे, वहां से अब अगर उठ गए हैं तो लिबर्टी जबरदस्त जगह है, वहां चारों जानिब से आवाम आती है, वहीं कालीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, लोगों को रात के लिए कॉल दे दें। सुनिए। Actually, they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा. By water cannon and heavy contingent. ठीक. अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना उससे. किससे पूछें? देखिए अगर बैठना है तो फिर अगर लंबा बैठना है सिंबॉलिक है तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ, वो जाने दे वापस। लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ये हो गया ना, तो जो करना चाहिए, ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे, वो इकट्ठा करना है, रात नहीं बनने में जो उसे काइंडली कॉल दे सारे। Actually, they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा. By water cannon and heavy contingent. ठीक. अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना उससे. किससे पूछें? देखिए अगर बैठना है तो फिर अगर लंबा बैठना है सिंबॉलिक है तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ, वो जाने दे वापस। लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ये हो गया ना, तो जो करना चाहिए, ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे, वो इकट्ठा करना है, रात नहीं बनने में जो उसे काइंडली कॉल दे सारे। तैयारियों की ऑडियो आपने सुनी। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये ऑडियो सामने आ रही हैं, होश रुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, ISPR का बयान सामने आया है। कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में जो सूरत हाल पैदा हुई, जो मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला किया गया, ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौज मुखालिफ नारे लगवाए गए, ये कहना है ISPR का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज़कियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने। मारिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही अफसोसनाक तकलीफ दे मनाजिर हैं जिस तरह से रिएक्ट किया है PTI के कारकुनान ने, उसके बाद ISPR का ये बयान, और अब जो इक़दामात लिए जा रहे हैं विफाकी हुकूमत की जानिब से भी, कैसे आप देख रही हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, ये चीज़ इस बात को वजाहत करती है कि इस वक्त जो आपकी सियासी पुख्तगी जिसका आप मुजाहिरा सोच रहे थे कि शायद PTI करेगी, वो उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर की तरह न सिर्फ काम किया बल्कि वो तमाम रास्ते अख्तियार किए जो उनको गद्दारी के जुमले में लेके आते हैं।
क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि जिस आइन के तहत वो सियासी पार्टी डिक्लेयर होते हैं, जिस आइन के तहत वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, जिस आइन के तहत वो समझते हैं कि उनको तमाम मराद दी जाएँ या उनको तमाम कंसेशन दिए जाएँ, आइन बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर पाकिस्तानी अफवाज या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। ज़ाहिर है इसके बरक्स न सिर्फ कानून हरकत में आएगा, लेकिन जो चीज़ अफसोसनाक है वो ये है कि सोची समझी स्कीम के तहत आपके मुख्तलिफ लीडरान ने ये तमाम बयानात जो है कलम बंद भी करवाए और साथ उसको वीडियो पैगामात के जरिए आवाम को मुश्तइल किया। जहाँ आपने आवाम को मुश्तइल किया उसके बरअक्स जो सियासी लीडरान थे वो वहाँ मौजूद नहीं रहे। ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि आपने तासुर पैदा करने की कोशिश की कि अवाम पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ है, जबकि हकीकत ये है कि आपने बतौर एक सियासी पार्टी गैर जिम्मेदाराना सलूक का सामना भी की भी अक्कासी की, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, जो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। ठीक है, हमारे साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ये जो बात ISPR की जानिब से अब आई है सामने कि इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और गिरफ्तारी के बाद फौज मुखालिफ नारे लगवाए गए। ये कितना अहम बयान है, क्योंकि इमरान खान पर भी कानून का उतना ही इतलाक होता है जितना दूसरे शहरियों पर होता है। उनकी गिरफ्तारी पर शरपसंदी क्यों, जराव घेराव क्यों, तोड़ फोड़ क्यों, निजी सरकारी अमलाक को नुकसान क्यों, फौज के खिलाफ नारे क्यों? जी देखिए, मैंने अभी इस सिलसिले में IG पंजाब जो है उनसे मैंने कुछ चीज़ें उनसे मैंने मालूम करने की कोशिश की है कि ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा जो पंजाब में फौज और दूसरी जो सरकारी इमलाक हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, तो उसको रोकने में इतनी जो है कमजोरी का मुजाहरा क्यों किया गया। उन्होंने जो मुझे डिटेल्स बताई है ना वो बड़ी खौफनाक है, और मुझे ये लगता है कि इस वक्त चारों सूबों की पुलिस और फौज, रेंजर्स, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सारी जो है एक जॉइंट हिकमत अमली के तहत मूव कर रही हैं। और पंजाब में जो है वो फौज को इसलिए नहीं बुलाया गया कि पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। पंजाब में फौज को बुलाने की वजह ये है कि ये इम्प्रेशन दिया जाए कि इस सूरत हाल में फौज, पुलिस, रेंजर्स और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक पेज पे हैं और इकट्ठे हैं। और इसके अलावा जो कुछ डिटेल्स मुझे पता चली हैं कि उनके पास जारी बात है कि इनके कुछ इनके अपने लोग भी तो होते हैं ना, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनके पास सबूत हैं, पंजाब पुलिस के पास कुछ सबूत आ गए हैं कि किस तरीके से कल शाम को कहां पर कोई मीटिंग हुई थी और किन किन लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत की, और फिर किस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्ट्रक्शन जारी की गई, बाकायदा असाइनमेंट्स दी गई। हर डिस्ट्रिक्ट में जो PTI के लीडर्स थे उनको असाइनमेंट्स दी गई, टारगेट्स दिए गए, और टारगेट में सिर्फ एक कोर कमांडर का घर नहीं था बल्कि कोर कमांडर गुजरांवाला का भी घर उस टारगेट में शामिल था, कोर कमांडर बहावलपुर का घर भी उस टारगेट में शामिल था। इसी तरह जो एक KPK का ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कहा गया जी कोर कमांडर पेशावर के घर पर हमला करो। जो एक कराची का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कहा गया जी कि कोर कमांडर कराची के घर पे हमला करें। तो इनके पास काफी लंबी चौड़ी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो इनके लोग थे उनके जरिए इनके पास ऑडियोज भी हैं, इनके पास ऑडियो वॉइस मैसेजेस भी हैं और इंस्ट्रक्शंस भी हैं। और इसमें मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि कुछ सीनियर रहनुमा जो है PTI के वो खुद भी इस पे इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और असद उमर साहब ने सुबह जो बात की थी कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और इनके बहुत से जो सोशल मीडिया पे जो स्पोक्स पर्सन है वो भी कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो इनके पास जो एविडेंस आई है वो एविडेंस की बुनियाद पर इनको यकीन हो गया है कि ये सारे का सारा जो मंसूबा है ये तहरीके इंसाफ की मरकजी लीडरशिप की मर्जी से बनाया गया है। और इसलिए अब इनके बहुत से जो अहम लीडर हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े जो जी हामिद मीर साहब बड़े खौफनाक इंकशाफात है, आप बताइए। जी ISPR की जो प्रेस रिलीज है आप उसको आप इस तनाजर में देखें
کہ اگر اس پریس ریلیز میں آپ کو ایک بہت سخت اور جارحانہ انداز نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پریس ریلیز کے پیچھے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ساری باتیں تو ابھی بھی میں آپ کو نہیں بتا پایا، تو یہ ساری انفارمیشن ہے ان کے پاس، اور ان کو خود یہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو کام ٹی ٹی وی پہلے کرتی تھی، آپ کو یاد ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ماضی میں آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کرتی رہی ہے، سی ایچ کیو پہ حملے کرتی رہی ہے، اور جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر حملے کرتی رہی ہے، تو وہ کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ جاری کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس پریس ریلیز کا مقصد یہ ہے کہ جو انفارمیشن صرف فوج کے پاس نہیں بلکہ پولیس اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے پاس جو آئی ہے، اس انفارمیشن کی بنیاد پر ایک بڑا گرینڈ آپریشن جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو اس گرینڈ آپریشن سے پہلے پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس سلسلے میں جو بھی کام ہوگا وہ ثبوت کے ساتھ ہوگا، جس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت میں ان کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہمارے سامنے ساری تفصیلات رکھ رہے ہیں۔ ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب نے۔ شاہزیب صاحب، یہ جو پوری تفصیلات رکھی ہیں حامد میر صاحب نے سامنے کی، جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی، اس کے پیچھے یہ پوری تفصیلات ہیں۔ ایک آڈیو لیکس آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، پھر کچھ ایویڈنسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح مختلف واٹس ایپ گروپس میں ٹاسک دیے گئے تھے کہ کس کس کور کمانڈر کے گھر پر کیسے آپ نے اٹیک کرنا ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی رہنماؤں کی بات کریں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، بڑے آرام سے کیجولی اظہار لا تعلقی کر دیتے ہیں کہ ہماری پالیسی ایسی نہیں ہے، ہماری سیاست کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن کھل کر مذمت بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے؟ دیکھیں جی، ظاہر پریس ریلیز بہت سخت ہے، اس کو اگر پڑھا جائے اس میں استعمال کی گئی زبان بڑی سخت ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے سخت ہے، اور جو حامد میر صاحب خبر دے رہے ہیں وہ ایک بڑی خبر ہے کہ گرینڈ آپریشن کی اس حوالے سے تیاری ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے جو حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ یہ بات کل حکومتی وزراء بھی کہہ رہے تھے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ ایویڈنس پوری ہے۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں سے، یہ تو باقاعدہ طور پر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تو ہمارے لوگوں کے ساتھ اور یہ کام کرایا جائے، تو انہوں نے اس وقت بتایا کہ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ تحریک انصافی کے لوگ تھے، ان کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے مختلف رپورٹرز کو لیا تو انہوں نے بتایا کہ لاہور میں جو کچھ ہوا وہ تحریک انصاف کے ہی ووٹر سپورٹر تھے جنہوں نے کیا، اس کے علاوہ پشاور میں یا پھر جو راولپنڈی میں کل کے دن ہوا، تو یہ باتیں تو ضرور سامنے آ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب اریسٹ سے پہلے جو انہوں نے بات کی تھی اور وہ ظاہر براہ راست بات کر رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، نام لے کر بات کر رہے تھے، تو اس سب میں ان کے عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر اور کارکنوں میں غم و غصہ تو تھا، اور غم و غصہ اس حوالے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر آج جو آڈیو لیکس آئی ہیں، پھر آڈیو لیکس کے ساتھ ساتھ کل کی جو کچھ فوٹیجز آئی ہیں وہ ظاہر سوالات اٹھا رہی ہیں ان دعووں پر جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان کی جماعت اس میں ملوث نہیں ہے یا ان کے کارکن یا ووٹر سپورٹر اس میں ملوث نہیں ہے اور یہ کوئی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ہوا وہ ویژولز تو قطعی طور پر اچھے نہیں ہیں، مگر جو پریس ریلیز ہے یہ اس بات کی ضرور نشاندہی کر رہی ہے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی جو رائے ہے اس کو ہموار کیا گیا ہے اس پریس ریلیز سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے کارروائی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، جو ہوگا قانون سے ماورا نہیں ہوگا، قانون کے مطابق اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک کے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، کچھ آئی ایس پی آر کے نکات ہمارے نئی معلومات ہماری آئی ہیں، ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے لگوائے گئے، شر پسند عناصر عوامی جذبات کو محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے ابھارتے رہے۔ شر پسند عناصر ایک طرف عوامی جذبات اپنے مقاصد کے لیے ابھارتے رہے، دوسری طرف دوغلے پن کا مظاہرہ کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے فوج کی اہمیت بھی اجاگر کرتے رہے۔ جو کام ملک دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑھے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج نے تحمل بردباری کا مظاہرہ کر کے اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گھناؤنی منصوبہ بندی کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جسے وہ اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے یعنی پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ آرمی کے سنجیدہ رد عمل نے فوج کے خلاف سازش کو
नाकाम बना दिया है। ISPR का कहना है कि अच्छी तरह पता है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे PTI की शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत, मुकम्मल पेशगी मंसूबाबंदी थी। जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। सिक्योरिटी इदारों, फौजी और रियासती तंसीबात और अमलाक पर किसी मजीद हमले का शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ISPR का कहना है कि हमलों के रद्द-ए-अमल की मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो काम मुल्क दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इख्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े इस गिरोह ने कर दिखाया है। ISPR की अहम प्रेस रिलीज हमारे सामने है। शाहज़ेब खान, ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। एक इंतहाई धीमा लेकिन पुरअज़्म मौक़िफ़ सामने आया है कि कल क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, कल कोई क्यों फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। हारिस नवाज साहब, ISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि ये कोशिश की जा रही थी कि फौजी हाउसेस पर हमले किए जाएं और रद्द-ए-अमल को अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसलिए तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुज़ाहिरा किया गया, ये कह रहा है ISPR। जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी तो बहुत अफसोसनाक बात है जिसका कि कल इन्होंने ये हरकत की है और अरेस्ट हुई है। नॉर्मल एक अरेस्ट है नेट जो 14 दिन वो उसके बाद बेल की हो सकती है, कोई ऐसी इनकी बात नहीं थी। लेकिन उसके साथ जो फिर उन्होंने वहाँ पर इंस्टिगेट किया है, जिस तरीके से अवाम को उकसाया गया है और उससे शरपसंद अनासर जो लोगों को उकसा रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे और इस पर सहूलत करी, PTI की लीडरशिप कर दी, जो बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने मिलकर साथ किया और वो ये देख रहे थे कि एक बार बार बुलाया जा रहा है कि और फौज में उस वक्त इतना रिस्ट्रेंट हो किया। आई एम रियली इम्प्रेस कि जिस तरीके से उन्होंने बुर्दबारी से, तहम्मुल से और रिस्ट्रेंट शो किया कि कोई प्री मैच्योर एक्शन ना किया जाए जो ये चाहते थे, ताकि अवाम और फौज में क्लैश कर दिया जाए तो नुकसान हो जाए और फिर एनिमी का भी जो नैरेटिव है वो पूरा हो जाए। मेरे ख्याल में बहुत बुर्दबारी से, समझदारी से काम लिया गया। लेकिन और ये जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका वो हमने एक दिन में कर दिया और इसको बिल्ड करने के लिए इमरान खान ने 1 साल से मुहिम चलाई हुई थी कि वो कभी कह रहे हैं कि फौज जाफर और मीर जाफर की बात करें, मीर सादिक, फिर कभी एनिमल्स की बात करें, फिर जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीनियर एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। ये बातें ऐसे नहीं की जाती हैं और ये इससे सोचेंगे इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और होगा। लेकिन अब बात ये है कि अब इस वक्त तमाम लोगों ने बड़े एहतियात से CCTV से इनकी शक्लें आइडेंटिफाई कर ली हैं, जो सरपसंद थे, जो इसमें रिंग लीडर थे, जो सहूलतकारी कर रहे थे, जो PTI के लीडर थे, उनको आइडेंटिफाई किया कि वो किस तरीके से कर रहे थे। और मुझे अब यकीन है कि अब इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी जो कम अज कम इट विल एक्ट एज ए डेटरेंट अगेंस्ट अदर के आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। मैं यकीन करें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जिस आसिफ ज़हरी साहब ने, अगर आपको याद हो, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का था पाकिस्तान खपे, आई थॉट के PTI की लीडरशिप इस वक्त देखते हुए पाकिस्तान से हमदर्दी करते हुए, आवाम से हमदर्दी करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं हारिस नवाज साहब। यही अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है कि ये नहीं किया, बल्कि वो और कौन इंस्टिगेट करते रहे हैं, उकसाते रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब इनके साथ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये दूसरों के लिए मिसाल भी होगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जिना हाउस, जिसमें कायद मोहम्मद अली जिना ठहरे रहते थे और वो बाद में आदमी को देख लिया गया, ये मुझे हैरानी है कि इनको दिल कैसे माना कि जिस तरीके से आग लगाई गई है, ये इससे और ज्यादा हालात खराब हो सकते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स क्यों नहीं एम्प्लॉय की गई कि कैंट में। देखिए, फौज अवाम से क्लैश नहीं करती। यू नीड टू हैव अ फर्स्ट लाइन जो होती है पुलिस रेंजर, दे शुड हैव बीन देयर टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है हारिस नवाज साहब, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। खबर हमारे पास है, आपसे कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की इत्तलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में वो PTI के कारकुनान के साथ ही मौजूद हैं, गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। मारिया सुल्तान साहिबा, आपकी तरफ में आऊंगी।
ये बताइएगा, जिस तरह से ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया है और फिर मीर साहब ने भी कुछ इंकशाफात सामने रखे कि कुछ एविडेंसेस आ गए हैं, ISPR का ये कहना है कि जो सहूलतकार, मनसूबा साज, सियासी बलवाइन कार्रवाई में मुलव्वस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है। काफ़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, लेकिन अब कोई खिलाफ कानून कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बताइएगा कि आपको लगता है कुछ ऐसा मुमकिनात में से हो सकता है कि इन तमाम एविडेंसेस की रोशनी में क्या PTI को कलअदम करार दे दिया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन ये तो मेरे ख्याल से PTI की अपनी हरकत और सुकनात हैं जो उनको जो है नहज तक लेके जाएंगे। लेकिन 3-4 चीज़ें तय हैं। पहली बात तो ये है कि आईने पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और बिलखसूस पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं जो इंतशार या उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी साख के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ तो साख का मसला नहीं है, यहाँ तो आपने फिजिकल हमले कराने की कोशिश की है, तो ना सिर्फ आप गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन आपको कानून के मुताबिक भी उसी सतह पर देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप सियासी तौर के ऊपर जब आप कहते हैं कि जी आप एक सियासी मंजरनामे के ऊपर आप आईने पाकिस्तान से अपने लिए कुछ मराज चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिले, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप कानून नाफिज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी फराहम करने वाले अदारे और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है आप हमले करवाएं। तीसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ की जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक हुई, आइन के मुताबिक हुई और आपकी जुडिशल सिस्टम के मुताबिक हुई। अगर तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है तो फिर आप का ये जो तर्ज अमल है वो समझ से बालातर है, और अगर आप समझते हैं वो गलत है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दूसरी आईनी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम सूरत हाल होते हुए आप ना सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को जो है गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके लीडर्स हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है पिछले 24 घंटे में तो नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपने ये तमाम मनसूबा बंदी पहले की, जिसको आपने खास सोचे समझे टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने उसको रिलीज किया, और फिर आप चाहते हैं कि अपनी करप्शन के लिए जो कादर ट्रस्ट के मुताबिक नजर आ रही है उसका जवाब आप जो है अपनी कंसेशन और नेगोशिएशन इस तरह करें कि आप एक आर्टिफिशियल जो है एक रेवोल्यूशन दिखाने की कोशिश करें जो सारी दुनिया में जो है 5वीं तर्ज जंग की तमाम तो उसके जो अनासर हैं उस बात की अक्कासी करते हैं कि आप इस किस्म की कोशिश करें। ऐसे मुमकिन नहीं होता। आप अपने कानून नाफिज करने वाले अदारे और अपने सिक्योरिटी अदारों को इस तरह अवाम दुश्मन अनासर के तौर पे नहीं दिखा सकते। यकीनी तौर के ऊपर इनको कानून के मुताबिक न सिर्फ निपटा जाएगा लेकिन इनके खिलाफ तमाम कार्रवाई उसके मुताबिक। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद हैं शाहज़ेब खानज़ादा भी। हामिद मीर साहब, आपकी जानिब आते हैं, जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसमें जो जुमला है वो चौंका देने वाला है। जो काम मुल्क दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े इस गिरोह ने एक दिन में कर दिखाया। इमरान खान साहब बहुत अरसे से खुद को अनटचेबल समझते थे, वो समझते थे और वो तासुर देते थे कि अगर मुझे छेड़ा गया, कहा जाता था कि वो रेड लाइन है, उन्हें किसी ने क्रॉस किया तो सारे मुल्क को आग लगा दी जाएगी। हम समझते थे ये बात हो रही है तो वाकई आग लगाने का मामला आ गया है। देखें, जो बात की ना हारिस नवाज साहब ने वो बड़ी अहम बात है, और क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि हम किसी को उसका जो ड्यू क्रेडिट है वो नहीं देते। लेकिन पिछले दिनों सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने ये क्रेडिट दिया आसिफ अली जरदारी साहब को कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया और पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे सिंध में जगह जगह जलाओ घराव हो रहा था, सड़कें बंद थी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के एक दूसरे के साथ मौसलाती राब्ता मुनक़ते हो गया था, एयरपोर्ट तक बंद हो गए थे, तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया था तो उससे तमाम सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। इमरान खान साहब जो है उनको यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उस पर तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तरीकाकार गलत था। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का जो रिस्पांस होता है वो पॉलिटिकल होता है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करते हैं तो इनका रिस्पांस पॉलिटिकल होना चाहिए था। इनका रिस्पांस टोटली नॉन पॉलिटिकल था। ऐसा लग रहा था कि PTI का लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, TTP का लीडर गिरफ्तार हुआ, और जिस तरह का रद्देमल TTP देती है उस तरह का रद्देमल PTI दे रही थी। अब इसी वजह से ये अब आपको भी सवाल करना पड़ गया कि जी क्या इस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। मैं जाती तौर पे तो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, लेकिन अब जिन लोगों ने ये जलाओ गिराव किया है और जिनके बारे में अब सबूत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौजूद हैं, तो वो मेरा ख्याल है PTI के दोस्त तो नहीं है, वो दुश्मन है। और ये जो भी
جلاؤ گراؤ ہوا ہے، جس کی ایویڈنس ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہے، آڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کل سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جدید دور ہے اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، پولیس کے جو ادارے ہیں، ان کے پاس بھی لیٹسٹ گیجٹس ہیں. تو اس وقت تک پاکستان کے تمام جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر جن لوگوں نے یہ وائلنٹ ایکٹیویٹی کی ہے اور مظاہرے کیے ہیں، جلاؤ گراؤ کیا ہے، آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ تقریباً ان میں سے 90% لوگ جو ہیں ان کے جو فیسز ہیں، ان کے جو چہرے ہیں، وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس محفوظ ہو چکے ہیں. اور اگر ان کی تصویریں ان کے پاس آ گئی ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، تصویریں بھی آ گئی ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کا بڑی آسانی سے شناختی کارڈ نمبر بھی پتہ چل جائے گا اور سارا پتہ چل جائے گا وہ کتنے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ 7,200 کچھ ہیں ابھی تک ٹوٹل پورے پاکستان میں جو لوگ اس وقت یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جس میں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد بھی شامل ہے تو اور کراچی بھی شامل ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت گیدرنگ اب تک کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے، لاہور میں نہیں ہوئی. جس ایک گروپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا وہ کوئی بہت بڑا گروپ نہیں تھا. اور اس بارے میں جب آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کو کیوں نہیں روک سکے اور رینجرز کیوں نہیں روک سکی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ آرڈر تھے کہ آپ نے گولی نہیں چلانی. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں یقیناً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی انوالو ہے، لیکن اس میں کچھ پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایویڈنس ملی ہے کہ انہوں نے بھی پن پوائنٹ کیا، نشاندہی کیا کہ فلاں جگہ پہ جا کے اٹیک کرو. میر صاحب یہ بڑی مس کیلکولیشن کی بات ہوتی ہے، تو مس کیلکولیشن اس دفعہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنس اپنے ہی گلے پڑ گیا اس پر؟ دیکھیں جو پورا پلان بنایا گیا نا، یہ ایک ریٹن پلان ہے اور اس پلان کے مطابق یہ ساری کل جو ہیں وہ ٹاسک دیے گئے تھے کہ فلاں جگہ پہ اٹیک کرو. اور جو پلان بنانے والے تھے آپ کو پتا ہے وہ بڑے سیلفش لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی جو منصوبہ بندی کرتے ہیں. مقصد اگر یہ ہو نا کہ آپ نے ملک میں سول وار کروانی ہے یا ملک میں مارشل لا لگوانا ہے تو وہ ایسا منصوبہ بنانے والا کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوتا، وہ نان پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے. تو وہ جس نان پولیٹیکل ذہن نے یہ منصوبہ بنایا اس کا یہ خیال تھا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوگا تو آگے سے فائرنگ ہوگی اور 15-20 بندے تو وہاں مارے جائیں گے اور لاشیں مل جائیں گی پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد جناب ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور یہ آرمی ورسز پیپل آف پاکستان ایک لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر مارشل لا لگ جائے گا. اور جب مارشل لا لگ جائے گا تو پورا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، جمہوریت ختم ہو گئی، ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ انہوں نے ایک امیجن کیا تھا، ان کی جو تخیل کی پرواز تھی، فلائٹ آف امیجنیشن تھی، اس میں ان کے منصوبے کے مطابق لاشیں گرنی تھی بہت زیادہ لاہور میں، لیکن وہ ہوا نہیں. اس لیے آئی ایس پی آر کی پریس میں کہا گیا کہ ہم نے بڑا میچور رسپانس دیا. تو وہ جو ناکامی ہوئی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ خود ہی اس کے اپنے گلے پڑ گیا. بالکل. شاہ زیب صاحب، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کی بھی بات ہوئی ہے، تو اگر ہم لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کریں تو ایک اچھا لیڈر ملک کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، تناؤ کو کم کرنے کی بات کرتا ہے، کارکنان کو اشتعال نہیں دلاتا. تو آپ کو لگتا ہے ایسی صورتحال میں آئی ایس پی آر کا رد عمل آنے کے بعد اب سینئر لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آنا چاہیے اور جو ساری آڈیوز مبینہ سامنے آ رہی ہیں ان کی وضاحت بھی دی جائے؟ آپ توقع کرتے ہیں ایسا ہوگا؟ دیکھیں جی، ریسپانسبلٹی تو ہے تحریک انصاف پر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہیں کہ ظاہر ہے ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو عوام کا رد عمل آئے گا، تو رد عمل آ رہا ہے، مگر پھر ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ نہیں مگر یہ جو رد عمل آیا ہے جس میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، عسکری اداروں کے گھروں پر حملے کیے گئے ہیں افسران کے، یا پھر جو سویلین ادارے ہیں ان پر حملے کیے گئے، یا پھر گاڑیاں جلائی گئی، یہ ہم نے نہیں کیا، مگر ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ایسا رد عمل آئے گا جو پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا اور پاکستان شری لنکا والی صورتحال کی طرف جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اون بھی کریں اور آپ ڈس اون بھی کریں. تو یا تو تحریک انصاف اس کو اون کر لے یا پھر ڈس اون کر لے، اور اگر ڈس اون کریں گے تو جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس قسم کی آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں، وہ
कंट्राडिक्ट कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम्स को। मेरा ख्याल है ये बात ठीक है कि मिस कैलकुलेशन एक बहुत ज्यादा हो गई है। अगर ये तवक्को की गई थी कि जैसे ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अगर बहुत ही ऐसा रिएक्शन आएगा जिसमें मुल्क में सिविल वॉर वाली सूरत हाल नजर आएगी, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी, तो उल्टा तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही डायरेक्ट जबान इस्तेमाल की गई है ISPR की प्रेस रिलीज में, और वो डायरेक्ट जबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर है। जब इस किस्म का कहा जाए कि शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं, तो वो एक मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते हैं। अब ये बड़ा डायरेक्ट है तहरीक इंसाफ पर, जो कहते हैं इमरान खान साहब पर कि फौज भी मेरी है, मगर जाहिर है फिर वो इदारे पर तनकीद भी कर रहे होते हैं। देखिए जाहिर है जो इदारे का माजी रहा है और जो इदारे की सियासत में मुदाखलत रही है वो तो सबके सामने है, और उस पर इदारे के मुख्तलिफ अफसरान का एहतसाब भी नहीं हुआ है, ये भी आवाम के सामने है। मगर तहरीक इंसाफ की मिसकैलकुलेशन भी इस सारी की सारी सूरत हाल में नजर आ रही है। खान साहब को प्रूफ देने चाहिए थे, जिन चीजों के वो इल्जाम लगा रहे थे वो प्रूफ नहीं दे रहे थे। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, उनके अपने सदर PTI के और उस वक्त के वजीर आला पंजाब उनके इल्जाम को इंडोर्स नहीं कर रहे थे। जो वो इल्जाम लगाते थे, कभी मोहन सलाई आके बताते थे कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है, तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम गलत है, कभी परवेज इलाही साहब उसकी तरदीद करते थे। अभी इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया 3 दिन पहले, 2 दिन पहले परवेज इलाही साहब ने आके कह दिया कि नहीं मैंने कहने पर FIR रुकी थी। तो ये हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है बड़ी मेजर मिसकैलकुलेशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वायलेंट मनाजिर होंगे, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट इमरान खान साहब के लिए होगी, और उससे नजर आएगा कि तमाम लोग बैकफुट पर चले गए हैं और इदारा बैकफुट पर चला गया है। कुछ ज्यादा हो गया, और उसमें जाहिर है ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या फिर वीडियो पैगाम आ रहे हैं वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। देखिए एहतजाज का हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अगर एहतजाज का हक वजीर आजम हाउस के बाहर है, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर है, तो हमारी अफवाज की और इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत रही है तो फिर मुजाहरा तो हो सकता है कोर कमांडर हाउस के बाहर भी और GHQ के बाहर भी, मगर वायलेंस नहीं हो सकती है, ना ही वजीर आजम हाउस के अंदर, ना ही चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, ना ही कोर कमांडर हाउस के अंदर, ना ही GHQ के अंदर। आप जला नहीं सकते, आप गाड़ियां नहीं जला सकते, आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है। तो ये वहाँ इस जगह पर मिसकैलकुलेशन हो गई है कि जो वायलेंस हुई है तहरीक इंसाफ अब उससे फासला इख्तियार कर रही है कि मुजाहिरा तो हमारे ही लोग कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान इतने बड़े लीडर हैं तो मुजाहिरा तो होगा, और हमने तो पहले ही बताया था कि जो रिएक्शन आएगा वो श्रीलंका जैसी सूरत हाल का होगा, मगर तोड़ फोड़ हमारे लोग नहीं कर रहे थे। ये ओन और डिसोन करना ये हो नहीं सकता है। शाहज़ेब आपको 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकूंगा, 1 सेकंड। जब 25 मई को पिछले साल एहतजाज की कॉल दी गई, जब इमरान खान साहब D चौक पहुंचे, याद होगा आपको, तो उस दिन भी इस्लामाबाद में हमने देखा था दरख्तों को जला दिया गया था, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो पुलिस को जख्मी, ये वायलेंस तो मुस्तकिल पिछले 1 साल का बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा है, ये एक दिन का नहीं है कि कल शायद कोई मिसकैलकुलेशन हो गई हो। तो ये तो हम पूरे 1 साल से देख रहे हैं कि जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, जब D चौक पहुंचने से मना किया गया था, I9 पार्क में पहुंचने का, अगर इस्लामाबाद के तमाम दरख्त जला दिए गए थे, और ये बात मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है आंसू गैस का धुआं था ज्यादा जिसकी वजह से वो दरख्त जलाए गए हों या लकड़ियां जलाई गई हों। याद है आपको ये जलाओ घिराव का मामला तो काफी आगे और काफी 2014 से चलता आ रहा है, जब पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था, PTV पर अटैक किया गया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फैजाबाद धरना केस का जो फैसला आया था उसमें भी कहा गया था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी अहम बात की है आपने वजी। अब जाहिर 2014 में हुआ और उसके बाद जाहिर अदालतों से भी वो सब माफ हो गया, तो सब की जिम्मेदार वो इस्टेब्लिशमेंट भी है और अदलिया भी है, क्योंकि जाहिर इमरान खान साहब को हुकूमत में लाना और नवाज शरीफ साहब को हटाना दोनों का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। और जो आप मई की बात कर रहे हैं उसमें जाहिर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाजत दी थी और कहा था कि रुकावटें हटा दें और इमरान खान साहब को जलसा करने दिया जाए। खान साहब ने कमिटमेंट दी कि वो D चौक की तरफ नहीं आएंगे और वो रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे और एक खास मकाम पर जलसा करेंगे, मगर उस कमिटमेंट की पासदारी नहीं की। और उसके बाद जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आई और जैसे राया आफरीदी साहब ने कहा कि ग्राउंड्स मौजूद है कि इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है, तो फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। जाहिर है अब उसका जवाब चीफ जस्टिस साहब दे सकते हैं, उसका जवाब दीगर जजेस दे सकते हैं जो उस बेंच में मौजूद थे, कि जब आप ही ने इजाजत दी, आप ही को तहरीक इंसाफ के बुकला ने गारंटी दी और आपको गारंटी देते हुए बताया और आपने ऑर्डर में लिखा कि तहरीक इंसाफ के ख्याल से बात करके दी गई है, तो फिर 1 साल गुजर गया। गुज़िश्ता मई से इस साल के मई तक आखिरी उसकी समाअत जो है वो दिसंबर में हुई थी। 5 महीने तक अदालत ने उसको छुआ भी नहीं है कि जी आप ही के अहकामात थे, आप ही ने गारंटी दी और आप उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो आपने क्या किया। तो फिर अदालत की जिम्मेदारी जाहिर बनती है कि ये एक
ایک रूम मिलता है इमरान खान साहब को और उनकी जमात को कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, जो भी करेंगे, तो 2014 से मिल रहा है। पहले एस्टैब्लिशमेंट और की गठजोड़ की वजह से मिल रहा था, और पिछले एक साल में ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने जो लीनियंसी दिखाई उसकी वजह से मिल रहा है। सदैव कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच के शीशे टूटे तो नोटिस हुआ, और उस पर तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व हुआ है आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद को भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी। दूसरी जानब ये पूरे मुल्क में ये जलाओ घिराव जारी है, मेट्रो स्टेशन जल रहे हैं, अस्करी टावर जल गया, बसें जला दी गई, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं हुआ है। हारिस नवाज साहब से बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से अभी ये बात भी हो रही है कि एक इशारा है कि ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो सकता है, क्योंकि ISPR के मुताबिक उन्हें अच्छी तरह पता है जो कुछ हुआ उसके पीछे PTI की शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और एक प्रॉपर मनसूबा बंदी थी। हम देखते हैं कि PTI के कारकुनान जब बाहर निकलते हैं, कुछ हम वीडियोस ऐसे देखते हैं कि फैमिलीज के साथ बाहर निकल आते हैं, खवातीन होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपके ख्याल में किस नौयत का ऑपरेशन हो सकता है ये? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। हारिस नवाज साहब से हम कोशिश करेंगे दोबारा राबता बहाल करें। मारिया, आपसे यही सवाल। जी मीर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कहा था कि हो सकता है कि अब एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाए शरपसंद अनासर के खिलाफ इस सूरत हाल से निमटने के लिए। तो हम देखते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी कि PTI के कारकुनान अपनी फैमिलीज़ को साथ ले आते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं। तो किस नौयत का ऑपरेशन हो सकता है? क्या बहुत एग्रेसिव अप्रोच होगी? मैंने ये नहीं कहा था हो सकता है, मैंने कहा कि होएगा जी। ग्रैंड ऑपरेशन होगा, बल्कि अब से कुछ देर के बाद शायद शुरू भी हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें जो है वो देखी भी हैं और मुझे बताई भी गई हैं। तो यहाँ पे कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आसपास मुझे काफी डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है रेंजर्स की, और दोबारा इस्लामाबाद जो है वो उस कंटेनर्स इस्लामाबाद में नजर आ रहे हैं। तो इसका साफ पता यही चल रहा है कि एक कोई बहुत मैसिव किस्म का जो है एक ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन ये उस तरह का ऑपरेशन तो नहीं है ना जिस तरह के कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं है। ये ऑपरेशन यही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, क्विक रिस्पॉन्स होगा। जिस बंदे के बारे में एविडेंस है कि ये बंदा जो है इसने फलां व्हाट्सएप ग्रुप में आइडेंटिफिकेशन की है, निशानदेही की है कि फलां जगह पे जाके हमला करो, और फलां बंदे से कह रहा है कि तुम उधर पहुंचो और मैं भी पेट्रोल पंप लेके आ रहा हूँ। इसमें 2-3 खवातीन के नाम भी हैं। तो अब बच्चों के खिलाफ तो मेरा ख्याल कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी देखे बहुत सी वीडियोज में बच्चे जो है कोर कमांडर हाउस के अंदर बच्चे भी जो है वो तोड़ फोड़ में मसरूफ हैं। कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ने में बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं आपको। तो अब उन बच्चों का तो कसूर नहीं है, उनके साथ जो बड़े हैं वो उन्हीं का कसूर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो तमाम लोग हैं ये जो दरअसल इमरान खान साहब का फैन क्लब है, पॉलिटिकल वर्कर तो मुझे नजर ही नहीं आए ना इनमें। वो पॉलिटिकल वर्कर तो हमेशा जो है वो पुरअमन एहतजाज करता है, वो या तो तकरीर करेगा या नारेबाजी करेगा या बैनर उठा के खड़ा हो जाएगा। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ऐसी बहुत सी खवातीन को जानता हूँ जिनका बेटा या भाई जो है वो 10-10, 15-15 साल से लापता है, और वो 10-10, 15-15 साल से वो कभी कराची में, कभी कोयटा में, कभी इस्लामाबाद में मुजाहरे कर रही हैं। पुरअमन रिस्पॉन्स है, यानी कि उनके जो प्यारे हैं उनको उठाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया हुआ है, उन्होंने कभी वायलेंस नहीं किया। कितना सब्र है। यहाँ पे आप देखें कि 1 घंटे के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के 1-2 घंटे के बाद जो है ये वायलेंस शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये कोई पॉलिटिकल रिस्पांस तो नहीं है ना। तो इसलिए ये जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं लोग जो कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो लूटमार कर रहे हैं और जलाओ घिराव कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें एक चीज और बड़ी अहम है कि चले हम समझते हैं कि जी आप गुस्सा था और आप गुस्सा निकालने के लिए आपने हमला कर दिया, लेकिन आप उनके घर के अंदर बेडरूम में घुस गए, वहां से आपने उनकी तकिए तक उठा लिए, फ्रिज खोल के उसमें से आपने स्ट्रॉबेरी तक जो है वो चोरी कर ली। और स्ट्रॉबेरी चोरी करने के बाद मुझे बड़ा अफसोस है कि इंतहाई पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं वो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर अंग्रेजी में वीडियोज रिकॉर्ड करवा रही हैं कि हमने ये स्ट्रॉबेरी जो है ये कोर कमांडर के घर के अंदर जो किचन था उसके रेफ्रिजरेटर को खोल के वहां से मैंने ये स्ट्रॉबेरी चोरी की है। ये होती है रियासत मदीना। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो ट्रेनिंग हुई है इस पॉलिटिकल कैडर की, ये बड़ी अफसोसनाक है। ये कोई पॉलिटिकल कैडर नहीं था, ये वही फैन क्लब है। और पहले तो मेरा ख्याल था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, बस थोड़े से नासमझ हैं,
لیکن یہ تو چوری چکاری میں بھی ملوث نکلے ہیں. تو یہ پہلی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک جو سیاسی موب ہے اس نے وائلنس بھی کیا اور چوری چکاری بھی کی, اور چوری چکاری میں پڑھی لکھی انگلش اسپیکنگ خواتین جو ہیں وہ سب سے آگے تھی. بہت شکریہ حامد میر صاحب, ماریہ سلطان صاحبہ, شاہزیب خان زادہ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث عباس صاحب, آپ تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان کی خیر ہو, پاکستان کی سلامتی ہو, ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں.